Yes, good morning, students. Today we will understand inheritance, its type and its syntax. तो सबसे पहले इनहेरिटेंस को हम जब प्रोग्रामिंग कोडिंग में बनाते हैं तो सबसे पहले हमें इनहेरिटेंस को सिंटेक्स वाइज समझना चाहिए। अगर हमें सिंटेक्स समझ में आ जाएगा, यानी एक टेम्पलेट जैसा कंसेप्ट है, अगर इसे समझ में आ जाता है तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छे से प्रोग्रामिंग की कोडिंग कर सकते हैं। तो लेट स्टार्ट टू अंडरस्टैंड द सिंटेक्स। एज वी नो द टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, there are the 5 types in the C++. First is the single inheritance, second is the multi-level inheritance, third is the multiple inheritance, fourth is the hierarchical inheritance, and fifth is the hybrid inheritance. So we will start with the first type of inheritance, that is the single inheritance. So here we will understand the single inheritance. So in screen you can easily see the syntax of single inheritance. As I am making this rectangle, it's showing the syntax how we can make a coding for the single inheritance. As it is very much clear, the syntax here we required two classes. One is the base class and second is the derived class. So here now see how we can make these classes. So here we require two classes. The first is the base class and second is the your derived class. So how we can understand? Now see, I am writing here, that is the VC, that is the base class, and DC, that is the derived class. Okay. So here there is a inheritance. So how we can show this inheritance? We have to also make one arrow. This arrow basically showing there is a relationship between the base class and the derived class. So as this is representing the single inheritance, because there are the only two classes, one is the base class and second is the derived class. Of course, now tell me how we can make an object. Will you make an object of base class or will you make an object of derived class? The answer is very simple. You can make object of both classes. Means let I am making a object of base class. So if you are making a object of base class, it means you should get a property and behavior of only base class. If you will make a object of derived class, you should get the property and behavior of both base class as well as the derived class. So this is the actually our requirement. As per our requirement, we will make our object. ठीक है, तो आप बेस क्लास का भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। अगर आपने बेस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है
तो ये ऑब्जेक्ट में बेस क्लास की प्रॉपर्टी और बिहेवियर को हम यूज करेंगे। लेकिन अगर हमने डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है तो हम प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर डिराइव क्लास के भी यूज करेंगे और साथ में साथ बेस क्लास के भी यूज करेंगे। ठीक है, तो दिस इज द एक्चुअली अवर थ्योरी। नाउ वी आर सीइंग द सिंटेक्स। तो देखिए सिंटेक्स में मैंने यहाँ पर बहुत सिंपल ढंग से आपको समझाया है कि इन दिस सिंटेक्स एक्चुअली वी आर यूजिंग द टू क्लासेस। तो एज यूजुअल as we are making a syntax or the instruction of the class, the same we will make here. तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको क्या यूज करना है, you have to use the class। तो आपने यहाँ पर क्लास यूज किया है, this is the your class, it is a keyword। now after that we have to make a base, तो it is a identifier। as we are making a base class, for knowing this is the base class, I am writing a word base। So after that you have to write a curly bracket to open a class body and closing curly bracket to close the class body। Now this three dot dot actually showing you have to write either here data member and the member function, and after that we have to write a your semicolon। So this semicolon showing the end of definition of your base class। now come to the your derived class। अब derived class में भी हमने क्या किया है, class कीवर्ड को लिया है और उसके बाद में वर्ड लिखा है derive। तो ये derive लिखने का मतलब हमें समझ में आना चाहिए कि ये क्लास derive है। ठीक है, तो अब ये बेस क्लास बन गई और ये डिराइव क्लास बन गई। तो यहाँ पर हमने बेस क्लास बनाया है और हमने यहाँ पर डिराइव क्लास बना दिया। तो बेस क्लास को बनाने के लिए ये जो ऊपर इंस्ट्रक्शन लिखा है उससे हम बना रहे हैं, और डिराइव क्लास बनाने के लिए जो नीचे इंस्ट्रक्शन लिख रहे हैं वो हमने बनाया है। नाउ कम टू दिस एरो। एरो इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द इनहेरिटेंस। एक्चुअली दिस एरो शोइंग द रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप हम कैसे बनाएंगे, तो देखिए यहाँ पे मैंने एक दो डॉट बनाया है। तो दिस टू डॉट एक्चुअली नोन एज ए कोलोन, इसको हम कोलोन बोलेंगे, एंड दिस कोलोन इज ए ऑपरेटर टू ज्वाइन द बेस क्लास एंड द डिराइव क्लास। यहाँ पे वी आर यूजिंग द एक्सेस मोड। आप बेस क्लास को डिराइव क्लास में किस तरीके से एक्सेसमेंट दे रहे हैं। तो as already we have seen in the previous video, there are the three kind of access mode। one is the public, second is the private and third is the protected। अगर आपको इससे और समझना है तो आप पुराने वीडियो से समझ सकते हैं कि हम किस तरीके से इस एक्सेसमेंट को यहाँ पे यूज करेंगे। तो लेट वी आर यूजिंग द पब्लिक। तो पब्लिक यूज करने का मतलब ये है कि द ऑल एट्रीब्यूट एंड द बिहेवियर ऑफ द बेस क्लास विल बी एज इट इज इन द डिराइव क्लास। हमने अगर कोई डेटा मेंबर प्राइवेट लिया है तो वो भी यहाँ पे बेसिकली प्राइवेट डिराइव क्लास में एक्सेस नहीं होगा, लेकिन जो भी पब्लिक वाला कंसेप्ट है उसे हम एक्सेस कर सकते हैं। अगर हमें प्राइवेट डेटा मेंबर ऑफ बेस क्लास यूज करना है इन द डिराइव क्लास, तो वी शुड यूज प्रोटेक्टेड एक्सेस मोड। ठीक है, अब यहाँ पे हमने बेस क्यों लिखा है, बिकॉज दिस इज ए सिंटेक्स। तो दिस सिंटेक्स एक्चुअली शोइंग कि दिस is the interface between the derived class and the base class, इसीलिए हमने यहाँ पर बेस क्लास लिखा है। अब यहाँ पे सिंगल इनहेरिटेंस है, एक ही क्लास आती है, इसलिए एक ही बेस क्लास का नाम है। अब डिराइव क्लास का डेफिनेशन लिखना है। तो जैसे हमने बेस क्लास का डेफिनेशन लिखा था कि
ओपनिंग करली ब्रैकेट, क्लोजिंग करली ब्रैकेट एंड सेमीकोलन। तो यहाँ पर भी वही चीज मैं आपको ये रेड से हाईलाइट करके बताया है कि इट इज ए व्हाट, यूर करली ब्रैकेट ओपन, then dot dot dot, it is a showing the, you can write here the definition of the derived class like a data member and the member function, and close curly bracket, and after that you have to write semicolon। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने कोड को लिखते हैं। तो मेरे ख्याल से सिंगल इनहेरिटेंस आपको अच्छे से समझ में आ गया है। यहाँ पर हम किस तरीके से प्रोग्राम बनाएंगे, तो ये प्रोग्राम बनाने के लिए वी हैव ए सिंटेक्स एंड यू यूज दिस टाइप ऑफ कंसेप्ट एज ए टेम्पलेट। इसको टेम्पलेट जैसा यूज करिए आप। जब भी आपको बोला जाए कि सिंगल इनहेरिटेंस का प्रोग्राम बनाना है या आपका प्रोग्राम, आप क्लासिफाइड करिए कि आपका प्रोग्राम सिंगल इनहेरिटेंस का है कि मल्टीपल इनहेरिटेंस का है या हाइब्रिड इनहेरिटेंस का। ये आपको पता होना चाहिए कि आपका प्रोग्राम किस काइंड के इनहेरिटेंस का है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो देखिए मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में क्या है, सिंगल इनहेरिटेंस को ही थोड़ा सा और एक्सटेंड करना है। ठीक है, तो मैं इसे आपको इस रेक्टेंगल से समझाता हूं। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने सेकेंड टाइप का लिया है, इट इज ए यूर मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो इट इज ए यूर मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है, तो मल्टीपल इनहेरिटेंस में हमको केवल सिंगल इनहेरिटेंस का एक लेवल आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो मैं इसको आपको फिर से समझाता हूं कि कैसे हम लोग बनाएंगे। देखिए तो यहाँ पे कितने क्लासेस बनेंगे, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप जल्दी से हैंड राइज करिए कि कितने क्लासेस बन सकते हैं। यहाँ पर हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस की बात कर रहे हैं, तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में कितने क्लासेस बनेंगे। तो अब ध्यान से देखिए कि मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में आपको 3 क्लासेस बनाने हैं। वन इज द बेस क्लास, सेकेंड इज द derived class known as a first base class, a derived class, and from this derived class you also make one more derived class, that is the DC2। तो देखिए मैं आपको अब ये तीनों क्लास का एक बार फिर से विजुलाइज कराने की कोशिश करता हूँ। तो लेट आई हैव ए वन बेस क्लास, देन वी हैव ए derived class, and also we have a one more derived class। ठीक है, तो ये 3 आपके पास पे क्लास आ गए हैं। तो इस क्लास का मैं लेबलिंग कर देता हूं जिससे कि आपको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा रेक्टेंगल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इट इज ए यूर बेस क्लास, नाउ इट इज ए यूर derived क्लास, एंड इट इज ए यूर derived क्लास 2। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 3 रेक्टेंगल दिख रहे हैं और ये 3 रेक्टेंगल शो कर रहे हैं क्लास को। तो देखिए इसके अंदर अभी रिलेशनशिप नहीं है, मैं रिलेशनशिप बना रहा हूँ। तो रिलेशनशिप के लिए वी आर यूजिंग दिस एरो। तो इस एरो से मैंने बनाया, तो ये बेस क्लास से डिराइव क्लास में लिंक हुआ, एंड डिराइव क्लास से फिर से हमने एक और डिराइव क्लास को लिंक कर दिया। तो इट इज रिप्रेजेंटिंग मल्टी लेवल। तो देखिए मल्टी लेवल का मतलब क्या हो रहा है, ये फिर से देखिए, इट इज शोइंग द फर्स्ट लेवल, it is a first level, then it is what, it is a your second level, and it is your third level। तो इस तरीके से ये मल्टी लेवल की बात हो रही है। ठीक है, तो फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल। नाउ वेयर वी विल मेक ए ऑब्जेक्ट। देखिए मैंने आपको पिछले बार भी बताया था, तो ऑब्जेक्ट आप किसी भी क्लास से बना सकते हैं, लेकिन हमें बनाना है इनहेरिटेंस का कंसेप्ट। तो हम नॉर्मली ऑब्जेक्ट कहाँ बनाते हैं, हम बनाएंगे लास्ट में। अब ये लास्ट वाला जो ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग एक्चुअली बड़ी मॉडिफाइड कंसेप्ट में बना सकते हैं। मॉडिफाइड कंसेप्ट का मतलब ये हुआ कि जो भी आपका एट्रीब्यूट और बिहेवियर है उससे आप
उसे आप बेस क्लास वाला भी यूज करेंगे, डिराइव क्लास का भी यूज करेंगे, और फिर से आप और आगे वाले डिराइव क्लास का भी यूज करेंगे। तो इस तरीके से हमें कंसेप्ट बनाना है। अब देखिए हम सिंटेक्स समझने की कोशिश करते हैं। तो इन दिस सिंटेक्स वेरी फर्स्ट यू हैव टू मेक ए डेफिनेशन फॉर द और क्रिएटिंग द बेस क्लास। तो देखिए यहाँ पे मैंने बेस क्लास को यूज किया है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इट इज ए यूर बेस क्लास। सबसे पहले क्लास कीवर्ड लिखा है, इसके बाद में आपने बेस वर्ड लिखा है, इट इज शोइंग कि यू आर मेकिंग ए बेस क्लास, एंड देन एज यूजुअल ओपन कर्ली ब्रैकेट एंड सेकंड क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट सेमीकोलन। तो देखिए यहाँ पे मैंने यूज किया है फर्स्ट लेवल, तो दिस इज ए फर्स्ट लेवल डेफिनेशन। तो ये आपका फर्स्ट लेवल हुआ, ठीक है ना, इसको मैंने पहले क्रिएट कर दिया। अब ध्यान से देखिए कि सेकंड इज द यूर क्लास अगेन इज हियर। अब इस क्लास के बाद मैंने यूज किया है डिराइव 1, और ये किसके लिए हम कर रहे हैं, दैट इज द लेवल 2 की बात हो रही है। दिस इज द यूर लेवल 2 है ना, तो ये लेवल 2 है आपका, इसके लिए हम लोग बात कर रहे हैं, इट इज ए लेवल 2, ठीक है। तो इन द लेवल 2 यू हैव टू लिंक विद द यूर बेस क्लास। तो देखिए ये बेस क्लास ये आपका यहाँ पर लिंक हो रहा है, ठीक है। बेस क्लास यहाँ ये हमने बनाया है सेकंड लेवल में, इट इज ए यूर डिराइव क्लास, और इसको हम इससे लिंक कर रहे हैं। तो जब हम इसको बेस क्लास से डिराइव क्लास से लिंक करते हैं तो वी विल यूज दिस कोलोन ऑपरेटर। तो कोलोन ऑपरेटर हमने यूज किया। अब हमको किस तरीके से बेस क्लास को ट्रीट करवाना है, तो हमने पब्लिक यूज किया है, और उसके बाद में वी आर यूजिंग दिस बेस। तो ये बेस हमारे को रिप्रेजेंट कर रहा है कि देयर इज ए लिंक बिटवीन डिराइव एंड द दिस बेस। तो इट इज कम अंडर द सेकंड लेवल। अब मैं थर्ड लेवल की बात करता हूँ। तो इन द थर्ड लेवल व्हाट यू आर डूइंग, यू आर सिंपली राइटिंग डिराइव 2 है ना। यहाँ पर सबसे पहले हमने क्लास लिखा है, आप ध्यान से देखिए, फिर आपने डिराइव 2 लिखा है, फिर ये आपने कोलोन ऑपरेटर यूज किया है, और इसके बाद यू आर राइटिंग दिस पब्लिक। तो किस तरीके से हम अपने बेस क्लास को, हालांकि ये जो बेस क्लास है वो डिराइव क्लास है बेस क्लास का, लेकिन डिराइव 2 के लिए डिराइव 1 क्या बना, बेस क्लास ही बना। तो यहाँ पे हम डिराइव 1 लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हमें रिलेशन मेंटेन करना है किसके बीच में, डिराइव 1 और डिराइव 2 के बीच में रिलेशन मेंटेन करना है। तो इस तरीके से वी हैव टू राइट ए अवर सिंटेक्स। अब इसके बाद डिराइव 2 का हमें डेफिनेशन बनाना है, तो वी विल यूज दिस कर्ली ब्रैकेट एंड देन क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट एंड द सेमीकोलन। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको सिंगल इनहेरिटेंस और मल्टीपल इनहेरिटेंस के, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के सिंटेक्स समझ में आ गए हैं। तो अब हम आगे मल्टीपल और हायरार्किकल और हाइब्रिड कैसे बनाएंगे उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं अब यहाँ पर इसको रब कर देता हूँ, और आगे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा, जिसको नहीं समझ में आया है प्लीज हैंड राइज, आप हैंड राइज करते रहिए बेटा, तो ही समझ में आएगा कि आपको समझ में कैसे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो लेट आई एम यूजिंग द मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो देखिए मल्टीपल इनहेरिटेंस के लिए मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो देखिए मल्टीपल इनहेरिटेंस में कितने बेस क्लास रहेंगे, भाई यहाँ पे 2 बेस क्लास रहेगा, ठीक है ना। तो ये एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमें कम से कम पता तो रहे कि हमें किस तरीके से बनाना है। तो 1 बेस क्लास एंड अनदर बेस क्लास। तो देखिए 2 बेस क्लास आपके पास रहेंगे, एंड इन दोनों को मर्ज करके हमें बनाना है एक डिराइव क्लास। तो ये एग्जैक्टली बन कैसे रहा है उसको देखते हैं। तो मैं आपको विजुलाइज करवाता हूँ कि किस तरीके से आपको बनाना है। तो लेट यू हैव ए 1 बेस क्लास एंड आल्सो यू हैव ए 1 बेस क्लास। देखिए इन दोनों में कोई भी रिलेशंस नहीं है। रिलेशन कहाँ से आ रहे हैं, रिलेशन आ रहे हैं डिराइव क्लास से, ठीक है।
तो इट इज ए यूर बेस क्लास और इट इज ए बेस क्लास, तो इसको इससे रिलेशनशिप बना देते हैं और इसको इससे रिलेशनशिप बना देते हैं। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप बन गया है। नाउ गो फॉर द यूर लेबलिंग। तो मैं यहाँ सबसे पहले लिख देता हूँ इट इज ए बेस क्लास 1 एंड हियर यू हैव टू राइट बेस क्लास 2 एंड हियर यू हैव टू राइट द डिराइव्ड क्लास। तो हमें ऑब्जेक्ट कहाँ बनाना है? तो ऑब्जेक्ट तो आप सभी के बना सकते हैं, लेकिन हमें अपने पुराने बेस क्लास का ऑब्जेक्ट को उसके बिहेवियर को हमें यूज करना है। तो वी विल मेक ए अवर ऑब्जेक्ट। मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से देखिए, दिस इज द यूर ऑब्जेक्ट। अब मैं यहाँ पर एक लिंक बना दूंगा, तो ये आपका क्या बन जाएगा, इसको मिटाना पड़ेगा, यस। तो नाउ मेक ए यूर लिंक। तो ये ऑब्जेक्ट बना आपका, देखिए, है ना, बहुत सिंपल ढंग से मैंने आपको समझाया है, शायद आप पूरी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं यूर ऑब्जेक्ट। तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो है डीसी का, यानी कि डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट बना। तो यहाँ से देखिए सारी चीजें मेरी क्लियर हो गई हैं। नाउ आई हैव टू क्लियर द सिंटेक्स। मैं अब सिंटेक्स को क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, कितने लेवल बनेंगे, हाँ ये बात भी अब क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास में फर्स्ट लेवल बन रहा है, इट इज ए यूर फर्स्ट लेवल एंड दिस इज द यूर सेकेंड लेवल। ठीक है, तो यहाँ पर 2 लेवल दिख रहे हैं आपको और 2 लेवल आपको सिंटेक्स में भी दिखेंगे। देखिए कैसे दिख रहे हैं, आई विल एक्सप्लेन यू। देखिए यहाँ पे आपको 2 फर्स्ट लेवल में क्लास दिख रही है। तो दिस इज द यूर 2 बेस क्लास। तो यहाँ पर हम बेस क्लास बना रहे हैं। तो फर्स्ट हम बनाते हैं बेस 1। तो बेस 1 हम यहाँ पर लेंगे यूजिंग द कीवर्ड क्लास। क्लास को लिखना ही पड़ेगा। एंड देन बेस 2। तो बेस 2 यहाँ पर आप बना रहे हैं एंड इट इज शोइंग द दिस इज द क्लास। तो क्लास में बेस 1 आ गया, क्लास में बेस 2 आ गया। अब इसके डेफिनेशन के लिए यू हैव टू यूज दिस करली ब्रैकेट्स। तो हमने यहाँ पर करली ब्रैकेट्स यूज किए हैं, इसी तरह बेस 2 में भी करली ब्रैकेट्स यूज किए हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या बन गया, 2 बेस क्लास बन गए, बेस 1 एंड बेस 2। अब ये हमने बना लिया भाई, है ना, ये हमने बना लिया है। तो इट इज ए यूर बेस क्लास। हमने इसको बनाया, बेस क्लास 1 पहले बनाया और देखिए ध्यान से हमने दूसरा बेस क्लास 2 बनाया। ठीक है, अब इन दोनों बेस क्लास को हमें बनाना है इनहेरिटेंस में। तो देखिए इनहेरिटेंस में हम कैसे बना रहे हैं, तो यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं इनहेरिटेंस। तो लेट वी आर यूजिंग द बेस 1 एंड द बेस 2। तो हम डिराइव क्लास बना रहे हैं अब। ठीक है, ध्यान से देख लेना भाई, अब ये डिराइव क्लास आपका बनने वाला है। तो इन दिस डिराइव क्लास very first you write a class as usual, then the derived। तो हम यहाँ पर derived word यूज कर रहे हैं। This all are the basically identifier, है ना, तो ये क्लास के नाम हैं, इसे आइडेंटिफायर बोलते हैं। इसको हम केवल लिखने से ऐसा नहीं कि ये सारे काम हो जाते हैं, ये सारे इस तरीके से, देखिए इंग्लिश में भी हम ग्रामर लिखते हैं, सारी चीजें सेंटेंस बनाते हैं तो उसका मीनिंग निकलता है। इसी तरीके से प्रोग्राम में भी इस तरीके से हम लिखते हैं तो ये मीनिंग निकलता है और कंपाइलर पता कर सकता है कि हम क्या चाहते हैं। तो कंपाइलर एक्चुअली इज ए वेरी वेरी मच बैकग्राउंड ऑफ प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग में कंपाइलर ही सारा समझता है, हमें तो बस इस तरीके से सिंटेक्स लिखना है। ओके, तो लेट वी हैव टू यूज पब्लिक। पब्लिक क्यों यूज कर रहे हैं कि हमें इस बेस क्लास को इस डिराइव में किस तरीके से परमिशन दे रहे हैं। तो यू आर राइटिंग ए बेस 1, तो ये बेस 1 आ गया। तो उसके बाद ये बेस 1 क्या कर रहा है, ये आपका जो एरो है उसको डिनोट कर रहा है ना, ये एरो जो आपको दिख रहा है, इस एरो को मैं यूज कर रहा हूँ हियर इन द बेस 1। फिर इस एरो को हम यूज करेंगे फॉर द बेस 2। तो यहाँ पे देखिए हम फिर से पब्लिक यूज कर रहे हैं और यहाँ पे यूज कर रहे हैं बेस 2। ठीक है, तो ये दोनों बेस 1 बेस 2 डिराइव में किस तरीके से काम करेंगे, इसका परमिशन हमारे पास में पब्लिक और पब्लिक है। अच्छा, यहाँ पर एक काम समझने वाली बात है कि हमने यूज किया है कॉमा।
तो कॉमा रिप्रेजेंट कर रहा है कि दो यहाँ पर पब्लिक क्लासेस हैं और इसको सेपरेटर का काम कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। और ये कोलोन आपका यहाँ पर लिंक का काम कर रहा है, इंटरफेस बना रहा है कि डिराइव के साथ बेस 1 है एंड बेस 2 है। अब डिराइव की डेफिनेशन कहाँ से आ रही है? डिराइव की डेफिनेशन आपके इस करली ब्रैकेट के पेयर से आती है। तो आई थिंक आपने मल्टीपल इनहेरिटेंस का सिंटेक्स समझ लिया है। अब हम इसके बाद क्या समझने वाले हैं? हायरार्किकल समझने वाले हैं, ठीक है। तो आई थिंक इट इज ए क्लियर। जितने लोगों को समझ में आ गया जरा हाथ भैया ऊपर करते रहो, जिससे कि थोड़ा कॉन्फिडेंस आपको भी बना रहे, मेरे को भी बना रहे। मेरे को क्या बनाना है? मेरे को ये बनाना है कि आपको क्या समझ में आ रहा है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो ही मेरी क्लास का मतलब है। अदरवाइज तो देखिए क्लास तो टीचर लेता ही रहता है और कितने लोग समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं ये बहुत देर बाद समझ में आता है। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा जल्दी समझ में आ जाए। इंटरेक्शन, किसी को बात करनी है तो वो बताएं, मैं उसका माइक अनम्यूट कर दूंगा, वहां से वो बात कर सकता है, ठीक है। या फिर आप मेरे पास ईमेल आईडी है या व्हाट्सएप नंबर है, जिसमें भी आपको कम्युनिकेट करना है आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए मैं आपको फिर से क्लियर बता दूं कि मेरा मोबाइल नंबर क्या है, उसको मैं आपको बता देता हूँ। बार बार आप लोग पूछते रहते हैं लेकिन मैं आपको बताता हूँ। माय मोबाइल नंबर है 9826424484। तो आप इसके ऊपर कभी भी व्हाट्सएप करें, जब भी व्हाट्सएप करें मैं जरूर आपको रिस्पॉन्स दूंगा। इसके बाद मेरा ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी आपको सबको पता ही होगा, तो इट इज माय पर्सनल ईमेल आईडी। तो विवेक दुबे एंड 22@gmail, ठीक है .com। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से कभी भी आप कम्युनिकेशन करिए। देखिए कम्युनिकेशन नहीं करेंगे तो पता नहीं चलेगा कि आपको क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो दिस इज द एक्चुअली माय इंफॉर्मेशन, आप इस पर कभी भी बात कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम अब हायरार्किकल इनहेरिटेंस देखते हैं और उसके बाद लास्टली हाइब्रिड देखेंगे। तो मैं इसे रब कर दूं, सबको समझ में आ गया? चलिए ठीक है, 2-3 स्टूडेंट ने हैंड राइज कर दिया है तो मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। ओके, तो वेरी फर्स्ट आई विल क्लियर दिस ऑल रिटर्न मैसेज, ठीक है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड द हायरार्किकल। अब हम देखने के वाले हैं कि लेट आई हैव ए हायरार्किकल एंड द हाइब्रिड। हम हाइब्रिड और हायरार्किकल को देखते हैं, ठीक है। तो चलिए अपन इसको अब हायरार्किकल और हाइब्रिड लास्ट बचा है हमारा दो, इसके बाद हम प्रोग्राम भी देखेंगे आज। तो देखिए ध्यान से, मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। सबसे पहले क्या बताऊंगा? हायरार्किकल बताऊंगा भाई। तो देखिए हायरार्किकल में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कितने क्लासेस बनेंगे। तो सबसे पहले बेस क्लास एक बनेगा, इट इज ए फर्स्ट बेस क्लास, देन सेकंड बेस क्लास, देन थर्ड डिराइव क्लास। तो यहाँ पर दो डिराइव क्लास हैं और एक बेस क्लास है, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब इससे मैं पहले आपको विजुलाइज करके बता देता हूँ कि हम कितने कंसेप्ट में बना रहे हैं। देखिए यहाँ पर केवल एक बेस क्लास है, तो आई विल मेक ए 1 बेस क्लास एंड देन वी विल मेक ए 2 डिराइव क्लास। तो यहाँ पे हमें 2 डिराइव क्लास बनाना है, ठीक है। तो लेट आई हैव ए 2 डिराइव क्लास। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। ओके, तो देखिए यहाँ पे मैं आपको 2 लेवल के कंसेप्ट समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले इट इज ए बेस क्लास, इट इज ए डिराइव क्लास 1, इट इज ए डिराइव क्लास 2, ठीक है। अब ये जो प्रोग्राम है ये कितने लेवल का है? ये है 2 लेवल का। तो देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इट इज ए फर्स्ट लेवल, इट इज ए फर्स्ट लेवल एंड इट इज ए सेकेंड लेवल, ठीक है। इट इज ए फर्स्ट लेवल एंड इट इज ए माई सेकेंड लेवल। तो देखिए यहाँ पे 2 लेवल के आपके इनहेरिटेंस हैं।
अब यहाँ पे हमें क्या समझना है, हमें अब समझना है रिलेशंस। तो देखिए इसमें रिलेशंस कैसे बन रहे हैं, इट इज ए फर्स्ट रिलेशन एंड इट इज ए सेकेंड रिलेशन। तो भाई ऑब्जेक्ट कितने बनेंगे, अब इसमें जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो बट नेचुरल दो बन सकते हैं, क्योंकि एक जो बनेगा वो आपका बनेगा DC से और एक बनेगा आपका यहाँ पे दैट इज द DC1 से। ठीक है, तो दो ऑब्जेक्ट हमको बनाने हैं, तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट आप बना लीजिए, फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंड द सेकेंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, दो ऑब्जेक्ट आपको बनाने पड़ेंगे क्योंकि आपको DC1 और DC2 का कंसेप्ट को समझना है। तो यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट 1 बनाएंगे एंड दिस इज द ऑब्जेक्ट 1 और यहाँ पर आप बनाएंगे ऑब्जेक्ट 2। ठीक है, तो इस तरीके से आपका विजुअलाइजेशन होना चाहिए, माइंड में रोड मैप बनना चाहिए। अब देखिए सिंटेक्स की बात करते हैं, तो सिंटेक्स में यहाँ पे आपको क्या बन रहा है, इट इज ए यूर, ये हम सिंटेक्स को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या है, यूर क्लास, पहले बेस क्लास बनाएंगे, तो क्लास लिखेंगे, उसके बाद उस क्लास का नाम बेस लिखेंगे। और यहाँ पे देखिए मैंने एक रेड से हाईलाइट किया है, यू विल मेक ए डेफिनेशन ऑफ दिस बेस क्लास। तो यहाँ पर आप इसको बेस क्लास बना लीजिए। नाउ कम टू दी यूर डिराइव क्लास। तो देखिए यहाँ पर पहले हम क्लास लिखेंगे, फिर हम डिराइव लेफ्ट 1। तो देखिए मैं यहाँ लेफ्ट क्यों लिख रहा हूँ भाई, ये समझाने के लिए लिख रहा हूँ और कुछ नहीं है। तो इट इज ए यूर लेफ्ट है ना, इट इज ए एल लेफ्ट और इट इज ए यूर राइट। ठीक है, ये बस आपको थोड़ा सा समझ में आना चाहिए। देखिए ये सारी जो नोटेशन है ना आपके कोडिंग पर है कि आप किस तरीके से प्रोग्राम बनाने वाले हैं। तो लेट वी हैव ए दिस कल्चर, उसके बाद आपका यहाँ पर क्या है, कोलोन है, इट इज इंटरफेस बिटवीन द यूर बेस क्लास एंड द डिराइव क्लास। नाउ हमारा बेस क्लास किस तरीके से वर्क करेगा, तो इट इज ए पब्लिक वर्क करेगा और इसकी डेफिनेशन यहाँ पर बनेगी जो इस ओपन करली ब्रैकेट और क्लोजिंग करली ब्रैकेट के बीच में है। देखिए हर क्लास को आपको सेमीकोलन से क्लोज करना है, ये याद रखें, अगर नहीं करेंगे तो फिर वो सिंटेक्स एरर देगा। लास्टली एक और हमें डिराइव क्लास बनाना है, तो दैट इज द क्लास एंड द डिराइव राइट 1। तो ये जो लेफ्ट राइट लिख रहा हूं मैं, इसका मतलब लेफ्ट है और इसका मतलब राइट। ठीक है, देखिए ये मेरी कोडिंग है, आप इसको पूरा नाम भी लिख सकते हैं। कभी कभी पूरा नाम लिखना ज्यादा अच्छा होता है क्योंकि किसी को समझ में आने के लिए। ठीक है, तो जब भी आप इंडस्ट्री में जाएंगे तो आपके सीनियर्स भी रहेंगे, आपके जूनियर्स भी रहेंगे, तो कभी कभी हमको जूनियर को समझाने के लिए पूरे एब्रीवेशन को लिखना चाहिए, मतलब केवल एब्रीवेशन में लिख के काम मत करिएगा। जैसे एब्रीवेशन मतलब मैंने BC लिख दिया, DCL लिख दिया, तो ये एब्रीवेशन हो गया। आपको पूरा लिखना चाहिए, बेस क्लास, डिराइव क्लास, लेफ्ट राइट क्लास। जितना क्लियर लिखेंगे उतना क्लियर प्रोग्रामिंग आपको समझ में आएगी। बाद में कंपाइलर को काम करना, कंपाइलर का काम नेक्स्ट फेज में आता है। ओके, नाउ बेस क्लास हमारा डिराइव 2 में भी कैसे रहेगा ये डिराइव राइट में कैसे रहेगा, पब्लिकली रहेगा। तो आई विल यूज दिस बेस क्लास एंड पब्लिक and the definition of this derived R2 R1 in this pair of this curly bracket। तो देखिए यहाँ पे हमने लेवल 2 की पूरी बातें कर दी हैं, लेवल 1 की बात कर दी है। तो दिस इज ए कंप्लीट थॉट ऑफ योर हायरार्किकल। तो यहाँ पर हायरार्किकल आपको अच्छे से समझ में आ गया है, तो मैं इसको अब रब कर देता हूँ। ठीक है, नाउ लास्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड द हाइब्रिड। हाइब्रिड सभी चीज का मिक्सचर है, खिचड़ी है। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए एक एक चीज आप समझ लोगे तो आपको प्रोग्रामिंग समझ में आ जाएगी। देखिए क्लासेस तो नो डाउट टाइमली होनी चाहिए और खत्म भी होनी चाहिए, लेकिन समझना भी टाइमली बहुत जरूरी है। तो देखिए हायरार्किकल इनहेरिटेंस को हम किस तरीके से समझ रहे हैं, हम दो इनहेरिटेंस को ज्वाइन करेंगे। पहला इनहेरिटेंस हमारा क्या है, तो हमें हायरार्किकल समझना है, हाइब्रिड समझना है। तो देखिए सबसे पहले मैंने हायरार्किकल इनहेरिटेंस का केस लिया है
और एक मल्टीपल इनहेरिटेंस का केस लिया है। इन दोनों को मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ हाइब्रिड। तो देखिए इसमें कितने क्लास आएंगे, इसमें 4 क्लास आएंगे। पहला क्लास आएगा बेस क्लास, दूसरा आएगा डिराइव क्लास एज ए लेफ्ट, फिर तीसरा आएगा डिराइव क्लास एज ए राइट, और तीसरा आएगा आपका डिराइव क्लास फ्रॉम द लेफ्ट एंड राइट। ठीक है, तो ये 2 पार्ट में हमें बनाना है। तो यहाँ पर देखिए डेफिनेशन चारों की बनी हुई है। ठीक है, तो देखिए अब मैं आपको बताता हूँ, पहले तो विजुलाइज करा दूं मैं, है ना, तभी आप जल्दी समझ पाते हो। तो लेट आई हैव ए वन बेस क्लास। अब बेस क्लास को मैंने बनाया लेफ्ट डिराइव क्लास एंड द यूर राइट डिराइव क्लास, और इन दोनों से हम क्या बनाने वाले हैं, इन दोनों से हम बनाने वाले हैं अवर डिराइव क्लास। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं रिलेशन बना देता हूँ। तो लेट आई हैव ए रिलेशन, दिस इज द वन रिलेशन, दिस इज द वन रिलेशन। अगर आप इसको केवल देखें, अब ये केवल 3 रेक्टेंगल को देखें तो आपको क्या ख्याल आ रहा है, ये मल्टीपल है कि ये हाइब्रिड है, क्या ख्याल आ रहा है आपका, कि इन है, ये सिंगल है या मल्टी लेवल है। तो आपको इमिडिएटली समझ में आएगा कि सर ये बेसिकली क्या है, मल्टीपल या फिर हेरल्कल है, ये हेरल्कल है। तो हेरल्कल में वन बेस क्लास होता है और लेफ्ट और राइट होता है। अब देखिए इसको मैं इससे ज्वाइन कर देता हूं, तो ये आपका मल्टीपल कंसेप्ट में आ रहा है। ठीक है, तो इट इज ए मल्टीपल कंसेप्ट। तो यहाँ पे मैं आपको, है ना, यहाँ पर लिख देता हूँ तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा कि हम क्या लिखने वाले हैं, लेबल से समझ में जल्दी आता है। तो लेट इट इज ए यूर बेस क्लास एंड इट इज द यूर डिराइव्ड लेफ्ट क्लास। ठीक है, it is a derived right class, and lastly what we have a derived class। ठीक है, तो ये सारे एब्रीवेशन हैं। अब हम जल्दी से लास्ट में समझना चाहते हैं इनका सिंटेक्स। तो देखिए यहाँ पे मैं क्लास पहले बेस बना लेता हूँ। ठीक है, सबसे पहले क्लास बेस क्लास बनाते हैं। तो ये बेस बना विद द कीवर्ड क्लास, और यहाँ पे आपको लिखना है उसका डेफिनेशन। ठीक है, अब डिराइव लेफ्ट में आ जाइए। तो यहाँ पे आपको बेसिकली क्या करना है, बेस क्लास को इंटरशिप करना है, रिलेशंस बनाने हैं। तो यहाँ पर आपको एक कोलन लगाना पड़ेगा और ये बेस क्लास लिखेंगे, और यहाँ पे आपका देखिए मैंने एक ही कलर से बताया है, बेस ग्रीन ग्रीन है, तो ये यहाँ से इंटरफेस हो गया। एंड इट इज ए लेवल, हाउ मेनी लेवल, 2 लेवल, है ना, नहीं 3 लेवल का कंसेप्ट है। तो ये फर्स्ट लेवल का कंसेप्ट आ गया, इट इज ए यूर फर्स्ट लेवल। अब सेकंड लेवल की बात करते हैं। तो सेकंड लेवल में आपके पास 2 क्लासेस हैं, और उसके बाद है आपका थर्ड लेवल। ठीक है, इसको मत भूलिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है फर्स्ट लेवल, इसके बाद ये है हमारा सेकंड लेवल। तो सेकंड लेवल में हमारे पास में 2 हैं, और ये है आपका थर्ड लेवल। ठीक है, इट इज ए थर्ड। तो ये नोटेशन को कभी नहीं भूलना भाई, नोटेशन ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। नोटेशन भूल जाओगे तो सारा का सारा खेल ही बदल जाएगा आपका। तो लेट आई हैव ए दिस डिराइव क्लास राइट का बनाएंगे, और यहाँ पे क्लास के थ्रू बनाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपका बेस फिर से लिखेंगे, क्योंकि हमें बेस को मतलब क्या बनाना है, हमें बनाना है बेसिकली हेरल्कल बना रहे हो। तो हेरल्कल में आपको इस तरीके का नोटेशन कंपल्सरी होता है। नाउ लास्टली वी हैव टू मेक ए यूर व्हाट, मल्टीपल, मल्टीपल बनाना है आपको, है ना, मल्टीपल। देखो मल्टीपल और मल्टी लेवल दोनों बहुत मतलब एक जैसे लगते हैं, थोड़ा याद रखें किसमें क्या चीज लगेगी। नाउ इन द मल्टीपल में हमें बनाना है एक डिराइव, हमने एक डिराइव बनाया है, एक डिराइव को इस तरीके से यूज करेंगे और ये हम करेंगे। इन दोनों को एक साथ यूज करना है, तो 2 बार आप कोलोन मत लगा देना, एक ही बार कोलोन लगेगा, और यहाँ पे आपको यूज करना है कॉमा सेपरेटर टू सेपरेट द टू अवर व्हाट क्लास। अब यहाँ पे हमें डिराइव क्लास का डेफिनेशन बनाना है, तो इसके लिए हमारे पास क्या है, ओपन करली ब्रैकेट, क्लोजिंग करली ब्रैकेट एंड सेमीकोलन। तो देखिए सेमीकोलन मैंने सब में लगाया है, अब ध्यान से देखिए। तो ये आपकी पूरी क्लियर
इंफॉर्मेशन नॉलेज हो गई कि हम किस तरीके से अपने प्रोग्राम में इसको बनाएंगे। ठीक है ना भाई, इस चीज को आप याद करके रख लेना, समझ के रख लेना, क्योंकि मैं आपको अब जल्दी से प्रोग्रामिंग पर लेके जाने वाला हूँ। ठीक है, तो आज की क्लास में यहीं पर स्टॉप करता हूँ। थैंक यू बच्चे।